ساتھ رکھے ہوئے تھے. تو یہ اس طرح بے سروپا باتیں ہیں جن کی کچھ حقیقت نہیں. ان عقائد کے ساتھ اگر کوئی آدمی تبلیغ کرے گا تو وہ تبلیغ کیا رنگ لائے گی. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ خیر. غالباً طارق صاحب ہی کا سوال ہے. مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ کوئی شریف آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بخاری شریف کی تمام احادیث صحیح ہیں. کیا یہ کہنا ان کا ٹھیک ہے؟ وضاحت فرما دیجیے. یہ کہنا ان کا غلط ہے, بالکل 100% غلط ہے. اس پر تمام مسالک کا سوائے شیعہ کے تمام کا اتفاق ہے. بریلوی بھی, دیوبندی بھی, اہل الحدیث بھی, سب کا اتفاق ہے اور تمام محدثین کا اتفاق ہے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری کہ صحیح ترین کتاب قرآن مجید کے بعد اگر ہے تو وہ بخاری شریف ہے. یہ عزت اللہ نے دی ہے اور اللہ کی دی ہوئی عزت تو کیا نکاح باطل ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس کا جرم چھپا ہوا ہے, کسی نے دیکھا نہیں, کسی نے پکڑا نہیں, گواہوں سے وہ جرم ثابت نہیں, بس دونوں مجرموں کو اپنا اپنا جرم معلوم ہے, پھر وہ توبہ کریں تو ممکن ہے اللہ رب العالمین ان کی توبہ کو قبول کرے. دنیا کی سزا اس وقت آتی ہے کہ جب 4 گواہوں سے وہ جرم ثابت ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی بھی 4 گواہوں سے یہ جرم کبھی ثابت نہیں ہوا جن کو اللہ کے رسول نے سنسار بھی کیا ہے. تو وہ گواہوں سے نہیں بلکہ وہ لوگ خود پیش ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سے کہا کہ ہمیں طاہر نہیں یا رسول اللہ, ہمیں پاک کیجئے. تو اللہ کے رسول نے ان کو سزائیں دی اور بعض دفعہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سزائیں دی تو ان سزاؤں کے بعد یہ بھی تصدیق کر دی کہ اللہ رب العالمین نے اس کی توبہ کو قبول کر دیا اور اس کے گناہ کو معاف کر دیا. بلکہ ایک عورت کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا جب حضرت عمر نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ ایک زانیہ کا فاحشہ کا جنازہ پڑھاتے ہیں تو آپ نے فرمایا تھا کہ تو اسے فاحشہ کہتا ہے عمر, اس نے تو ایسی توبہ کی ہے اگر میں مدینے کے 70 گناہگاروں پر بھی اس کو تقسیم کروں تو ان 70 کے 70 کی اللہ رب العالمین بخشش کر دے. اس نے ایسی توبہ کی ہے. تو بعض دفعہ آدمی جب توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس نے جس نیت سے صدق دل سے توبہ کی ہے تو اللہ بہرحال اس کی توبہ کی لاج رکھنے والا ہے. باقی معاملہ اللہ کے سپرد ہے, قیامت والے دن جو چاہے وہ سلوک کرے. جزاکم اللہ خیر. کیا تقلید حرام ہے یا شرک؟ وضاحت فرما دیجیے. قرآن مجید اصل میں حرام, ہمارے ہاں جو لفظ بولا جاتا ہے حرام کے معنی ہوتے ہیں منع کے. جیسے کہتے ہیں کہ ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے, بہن کے ساتھ نکاح حرام ہے. تو اردو دان طبقہ حرام کو کچھ کھانے پینے کی چیزوں کے لیے مخصوص سمجھتا ہے, جیسے جی یہ پانی حرام ہے, یہ بوٹی حرام ہے, یہ گوشت حرام ہے. تو حرام کا جو لفظ ہے یہ اصل منع کے لیے, یہ چیز حرام ہے کہ معنی یہ منع ہے. تو حرام کا لفظ آپ اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے اس چیز سے منع کیا ہے, اس معنی میں حرام ہے. لیکن اس کا جو منہج ہے وہ شرک پر لے جاتا ہے, اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی ہے کہ سورۃ شورا کے اندر آتا ہے ام لہم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ, کہ ان لوگوں نے اللہ کے ایسے شریک بنا لیے ہیں شرعوا لهم من الدین, جو ان کے لیے دین بناتے ہیں, شریعت سازی کرتے ہیں, ما لم یأذن بہ اللہ, جس کے بنانے کی اللہ نے ان کو اجازت نہیں دی.
اور कमाल की बात यह है, मौलाना मौदूदी ने भी इसकी तफसीर करते हुए ये वजाहत की है। आप उनकी तफसीर तफहीमुल कुरान उठाकर देखें कि उन्होंने ये वजाहत की है कि यहाँ शरीकों से मुराद वो शरीक नहीं है कि जिनकी मज़ारों पर लोग आकर के चढ़ावे चढ़ाते हैं, जिनके नाम की नजर नियाज करते हैं, बल्कि यहाँ वो शरीक मुराद है जिनके कौल और फेल को आदमी दीन का दर्जा देकर उस पर अमल पैरा होता है। ये मौलाना मौदूदी के अल्फाज है, और इससे भी यही जाहिर होता है कि तकलीद जो है वो शिरक है। कुरान मजीद की आयत उसको वाज़ेह करती है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। डॉक्टर अमजद साहब पूछते हैं, नमाज की रकातों के बारे में बताइए। यहाँ सऊदी अरब में रकातें जो हैं ये सही है या जो पाकिस्तान में किताबों में रकातें दर्ज थीं? तरावी की रकतें कुछ नहीं वजाहत की है साहिल ने। बहरहाल गालिबन 2 रकातों के बारे में पूछ रहा हूं। सऊदिया की रकतों का मुझे मालूम नहीं है कि यहाँ क्या फ़र्क है। ये पहली दफ़ा सवाल मेरे सामने आया है। वजाहत कीजिए इसकी कि आप कौन सी रकतें पूछना चाह रहे हैं। जी जज़ाकल्लाह। असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सुनन ऐसी फरमाई हैं जो जिन पर आपने दवाम इख्तियार किया है। उसे पाकिस्तान में सुन्नत मुअक्कदा हम लोग कहते हैं, यानी अल्लाह के रसूल ने या तो कौलन उसकी ताकीद फरमाई है या फिर अमलन आपने उस पर दवाम इख्तियार किया है, तो हम उसे मुअक्कदा कह देते हैं, यानी ताकीद शुदा, ज़रूरी आप कह लें, लाजिम कह लें, यानी उसे पढ़ना चाहिए और पढ़ने से फ़ायदा है और ना पढ़ने से नफ़े में नुकसान है। वो ऐसी हैं जैसे फजर की सुनते हैं 2, अल्लाह के रसूल ने सफ़र में भी इन्हें अदा किया है, सफ़र में भी पढ़ा है। इसी तरह इशा के वित्र है, अल्लाह तबारक व तआला के रसूल ने सफ़र में भी इन्हें अदा फरमाया है। इसी तरह ज़ोहर की जो पहले कम अज़ कम 2 सुनते, अलबत्ता जैसे 4 है और पाकिस्तान में अक्सर किताबों में ज़ोहर से पहले 4 सुनते होती हैं, बिलखुसूस अहनाफ की कुतुब में, और 2 का बिल्कुल जिक्र नहीं होता। हालांकि ज़ोहर से पहले अल्लाह के रसूल से 2 सुन्नतें भी साबित हैं, 4 भी साबित हैं। तो आप 2 भी लिखें ताकि अगर कोई मेरे जैसा कमज़ोर आदमी है और वो 2 पर इक्तफा करना चाहता है तो वो उस पर ये लाजिम ना करें कि वो लाजिम 4 ही पढ़े, वो 2 भी पढ़ ले। इसी तरह बाद वाली भी 2 सुनते जो है, एक दफ़ा अल्लाह के रसूल ज़ोहर की नमाज पढ़ाकर यानी फ़र्ज पढ़ाकर आप बैठे और एक वफ़द आया, आप उनको मसला वगैरह समझाने बैठ गए, तो इतनी देर हो गई कि हज़रत बिलाल ने असर की अजान दे दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर असर की नमाज पढ़ाई और असर की नमाज पढ़ाने के बाद वो जो सुनते ज़ोहर के बाद आपकी छुट्टी थी, आपने असर के बाद उन्हें अदा फरमाया, यानी ये तकल्लुफ़ भी आपने किया। तो इन चीज़ों से ये जाहिर होता है कि इन चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहिए जिन चीज़ों के लिए अल्लाह के रसूल ने इस कदर तकल्लुफ़ किया। तो इसलिए उनको मुअक्कदा कहकर आप उसको अदा करें। अलबत्ता बाज़ सुन्नतें ऐसी हैं अल्लाह के रसूल ने हमारी मर्जी पर छोड़ दिया, जैसे मगरिब से पहले की 2 रकतें हैं, मगरिब से यानी फ़र्ज़ों से पहले की 2 रकतें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा फरमाया कि सल्लू रकातैन के अल्फाज इस तरह आते हैं कि 2 रकतें जो हैं वो पढ़ो, मगरिब से पहले 2 रकतें पढ़ो, और तीसरी मरतबा आपने फरमाया लिमन शाह, जिसका जी चाहे। तो अब इस जिसका जी चाहे हमें अब इख्तियार मिल गया कि अगर हमारा दिल चाह रहा है तो हम पढ़ लें, नहीं दिल चाह रहा तो हम ना पढ़ें। तो अलबत्ता ये जो नफिल वगैरह होती हैं, वैसे तो सुनन सारे नफिल ही हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने चूंकि पढ़े हैं तो इसलिए हम उनको सुन्नतें कह देते हैं। नफिल जो हैं वो एक लाजमी चीज़ नहीं है, इल्ला ये कि शरीयत ने हमें पाबंद किया हो कि ये तुम्हें करना चाहिए। और क़यामत वाले दिन जहाँ हमारे फ़र्ज़ों में कोताही और कमी आएगी तो इंशाअल्लाह ये जो सुनन है ये आपकी वो कमी अल्लाह के फजल से पूरी करेंगे और उस वक्त हमें इनकी अहमियत का अंदाज़ा होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। लेकिन शेख, बाज़ लोगों का नज़रिया ये है कि अगर हम ये छोड़ देंगे सुन्नतें तो इस पर अजाब होगा। मेरा ख्याल है ये जुमला मुनासिब नहीं है, चूंकि उस पर अजाब होगा कि दलील हमारे पास नहीं है। अगर किसी साथी के पास आए तो जज़ाकल्लाह, मेरे पास इसकी कोई दलील नहीं है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। हमारे यहाँ फर्ज नमाज के बाद दुआ की जाती है, उस वक्त जब तक इमाम न दुआ करे नमाजी उठते नहीं हैं। कुरान हदीस की रूह से बताइए कि क्या दुआ के बारे में क्या हुक्म है। असल में इमाम का जो मुक्तदी को जो इमाम का मुकल्लफ बनाया गया है वो तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम तक है। सलाम तक मुक्तदी इमाम का मुकल्लफ है जब तक वो नमाज